Obesity in India is on the rise. A recent meta analysis found that nearly 1 in 12 children are already obese. But why is this happening? Is it our lifestyle, our diet, or the fitness culture we are building today? In this episode, I sat down with Nikhil, a gym owner and coach, to talk about the real state of fitness in India, from food habits to the workout myths, and what it actually takes to stay consistent in the long run. If you care about your health or you have ever thought of hitting the gym, this episode is the right one for you. And one major announcement which I have is my merch. Yes, I'll be wearing this in every single podcast episode now. And thanks for your support. Let's dive into the episode. A meta-analysis of 21 studies from 2003 to 2023 found that Okay. 8.4% of Indian children are obese on average. Okay. But depending on the region, it ranged from 3% to 23% as well. Okay. Now, based on this study, what does this suggest? Like our environment, culture, or lifestyle, this plays a bigger role in our fitness or not? See, first and foremost thing, we need to understand that each and every area has its specific like terrain region or geographical conditions, right? So let's say if we consider Arabic-based country, Saudi Arabia, that area. So there the temperature rise around 40 degrees, 50 degrees, right? So the vegetation part is not that good, so that people have to rely more on the meat consumption side, number one. Secondary, when we come to like in European countries based, there the condition is completely cold. Correct. So at that area, like vegetations or any kind of farming is also that very tough. India is a country where we have domination of more of carbohydrate based production in our country. So the reason why is from our tradition, from our history, we were following more of carb dominant food. Carb dominant food in the sense like rice, roti, the grains. So the productivity was more high of grains in our country. That's the reason why the consumption is also very high in our country. Right. That's related to the history part. Since the trend is changing on, and it's not an issue that the combination was not good in our previous old meals also. Like old meals in the sense what we used to consume earlier. Since the trend has been changing, so the protein domination has been reduced a little. At that time, people were around 7 feet, 8 feet tall. So their intake was also pretty high. Their exercise, like energy expenditure, was also pretty high. Okay. But now, if we see, people hardly move around 1 hour or 1.5 hours in a day. Right? But the consumption is still the same, more of carb dominant. And protein also requirement up to we are not eating up to the requirement. That's the reason why this meta-analysis what you have shown from 2003 to coming years, like going forward, we have reduced the protein intake from around 70% to now around 3% or 4%. And the protein intake which we consume is not completely full, complete source of protein. Okay. So, like, where do you think we are lacking then? Because what is the actual protein requirement which a human needs? Like, let's forget India or whatever vegetation is there. So as in a general way, if we say like every individual needs to consume, even if you are a person who leads a very sedentary lifestyle, if you don't do any basic activity also, so minimum to minimum requirement is 1 gram. That's 1 gram protein requirement per kg of your body weight. Right? So if you are a healthy individual, considering that point, suppose if you are a 70 kgs guy, so to do the bare minimum thing or to consume the bare minimum protein also is around 70 grams in a day. But if we see our general lifestyle as of now, in a sum of like 30 odd people, so the average of all these 30 individual will be around not even crossing around 20% of their overall intake. So suppose 70 gram is what required, people consume less than 20 gram or even less than 20 gram only. So that is the reason why we are unable to get that type of transformation or that type of physique, or we are not able to maintain that type of quality life there. Okay. So again, like
So our lifestyle right now has become sedentary, as you mentioned earlier as well. But one cannot avoid that lifestyle because he needs to go to the job. Like, since we are speaking about individuals who are below 25, like this is a specific niche right now. Okay. So below 25 years old people, so they might have just completed the college, they are going to the job, newly they are earning, and they have the tendency to spend as well, to enjoy the nightlife and everything. Okay. But when we see from that perspective, what do you think? Like, this sedentary lifestyle can be changed or not? It can be changed based on awareness level. So see, previously going back around like 3 or 4 years back, not even 3-4 years back, pre-COVID reason, so it's almost like 3-4 years only. So pre-COVID reason, the awareness was not that pretty high. People was not that aware. But because the social media influence has that much impacted on every individual life, so they have started to understand like what is the base of fitness, what we required, what we have to do on a general basis. The thing goes with the present generation is the diet consumption or all this thing is not yet implemented in a way in our surrounding or in our ecosystem that it easily accessible to everyone. Right? Even if you, so let's say if you want to order a chicken salad, let's say a basic thing, it would cost around like 250 or 300 rupees. So the student, those who eat, whose expenditure is not crossing around 15,000 rupees a month, I'm considering overall month. Right. So for him to take a meal of 250 rupees is not going to be that easy. So the point is, students have to take the charges, they need to educate themselves, and by that way, by implementing the changes in their lifestyle, that is the only way where they can able to understand like what is my requirement, what I have to do. So this will not going to change at an instant, it will take some time. Previously people was not more prioritizing on protein, now they are doing it. Since the whey protein market has been gone up to a mark, so the availability of whey protein is easy. Eggs are easily source of protein which is available. You can rely on some basic protein stuff which is still on a cost effective side. You can able to consume around 50 to 60 gram of protein in 100 rupees budget. But the thing is, we need to spend time on it. We need to understand what is our requirement. We need to design our overall day in a productive manner so that we can able to consume that protein in a limit, and that to a better way, which can save the money point as well, and they can able to enhance their lifestyle also. So based on awareness only, it is going to change. We cannot able to change all of a sudden. It will take some time. We'll speak on this later on because I have few, topics which you can cover on that. But right now, the underlying point is what I want to convey is urban area, basically the metropolitan cities, right? Have they become more comfortable, or are they surrounded by too much convenience and indulgence? I'm talking about the people there. Okay. Not like that completely. See, I said no, the social influence, what is available in the market as of now, the consumption of what we see on a regular basis is not that high related to the fitness point. Okay. Right? It's not that high. So it is not in our curriculum of education also that we have to take, this is the basic requirement. We are not prioritizing this. That's the reason why the surrounding also can't able to produce or to manufacture or to sell that kind of food which is easily accessible. So if the thing is not easily accessible, we cannot able to force one individual also that to take this kind of thing or to eat or prioritize more protein. So in metropolitan city, it is okay, but the maintenance is also that pretty high. To get it under the budget, it's not going to be that easy. That's the reason. When you go to the urban side, so we have a tradition like, no, we eat 2 days of non-veg, 3 days of veg. So we can able to manage all those things in a easiest way. Okay. Okay. So that is from non-urban civilization type. So their activity levels are pretty high. Here, the food which we are going to consume is not that appropriate according to our requirement, and the cost-effective side is the biggest problem. That's the reason why people are not able to afford most of the thing in metropolitan cities, though they have the basic awareness also that this is the right thing which I need to eat, but still they can't able to manage it. So we cannot able to blame them directly. When the consumption is high,
pretty much the ecosystem will improve. At that time, the price will go down a little bit. So then at that time, we can say that is it easily accessible, and then at that time, people will prioritize more on eating all those things. So with this statement, you are trying to tell that diet is very expensive in urban cities? Yes, it is expensive because the cost effectiveness is not that pretty high for a person. Those like under 23, below 23 guys, those who are not earning, for them it's little bit expensive. So they cannot able to manage that easily, but they have to find the hacks. So that hacks is available as a form of influence in social media, where people are going to tell them the sources of protein which is available. Right? I cannot able to tell directly everyone that you have to earn your money at that age, because at that point you cannot able to manage all those things in a way. Few can able to do, but not everyone is not that bright to do all those things. But still, if the protein requirement is there, or if the livelihood has to be improved in overall thing, the productivity which need to go up, then people need to rely more on their fitness point as well. They need to work more on that. So that is only possible when the surrounding, the people in the ecosystem which we are living now. Let's say if we are having a group of 100 members, if in 100 member, if 80 to 90% are able to access the fitness point in a right way, then automatically the next 10 members can able to get it easily. But if the 90% of the people, those who are not that aware of that fitness kind, if things are not easily accessible, then automatically the 10% those who are doing, they cannot able to, or the 90%, sorry, the 90% those who want to do, they cannot able to get that kind of information available, or that kind of motivation, or that kind of lifestyle accessibility easily. So it will take time. Previously, right now, only you mentioned one thing about education curriculum. That, there needs to be change there so that we can actually get more awareness regarding it. But when you think about it, Nikhil, it will take many years to actually get that into a curriculum, right? So coming back to the point, you told about social media as well, the influencers there, and we can actually learn a lot from social media regarding our diet. The information is abundant, and we can access it for free. But in today's era, there are many people who go viral for spreading lies or giving misinformation. So here, that's the point only, the education will come in. See, there are few books that we said RDA. RDA in the sense recommended dietary allowance. So there is a book, ICMR. ICMR is our Indian dieting management in a sort, we can say. Right, so they manage and publish everything. What is our necessity? What is the basic requirement we need to consume? Right. Previously, NAC was there. Like there was an advertisement which was published back in 2000s, like 2010. In that time, like rose cow one day. Right. Correct. So people understood that protein requirement is not that high that time. So the government has implemented this kind of thing, that we have to eat more of protein. Previously, the import duties on the whey protein was pretty high. Now, since the protein requirement is increased, automatically the government has reduced little bit of import duties on it, and accessibility. Even the import duties are not that high also for some, let's say, because people may consider this is a debatable topic that it is high or low. Correct. So I'm not going into that, but still, at that time, that was not easily accessible. At this point, the protein thing which is available in the market is easily accessible. Coming back to the point, like people are going viral, or people are trying to misleading thing. So it's completely based on the perspective of the people, those who living in a surrounding. So education point is like we cannot able to change it directly, but we know the basics thing. What is protein? How much gram we need? Like your basic pyramid system. Pyramid system means what are the micronutrients or micronutrients which we need to consume. If we add that thing in our curriculum below, and this thing is not like we can end up till 10th class, like in the secondary education. This thing need to be implemented in the higher education side. At the same time, it needs to implement on the going post-graduation thing also. There must need to have one subject which is related to the physical education. Right? Okay. Physical education point is related to like your mental health, your physical health. These both things need to be added. That's the reason why we have a sports events or sports meets. In a year once we also conduct, in school or colleges they also conduct. But this is more about improving or pushing more of physical fitness.
But physical fitness is only going to improve when we have a exam point also, where people will try to understand, or kind of event or kind of social awareness camp they need to conduct as a part of event which is related to more of the nutrition based. Then they will understand. So when we give freebies to them, like in the earlier school days, then they will able to understand, okay, why this is required. Previously, the cutoff age for fitness was around below 18. Parents also they don't need to allow. That is the case even now as well, हाँ, right? so height रुक जाएगा, you can't able to go to the gym, this is not needed. This time of myth was there, but since the awareness is pretty high now, parents are understanding, like okay, there is no such thing. So things are changing, but it will take some time. वो तो है. Baki, now when we speak about my generation more specifically, because you are millennial, I'm a Gen Z right now. So probably for the people like 18 to 25 years old, अभी वो उन लोगों को कैसा रहेगा कि नौकरी कर रहे हैं और फिर अभी कैसा है, जो भी पैसा बच रहा है उसमें डाइट भी काम मेंटेन करेंगे, जिम भी जाएंगे. तो उनको सजेशन क्या रहेगा आपकी तरफ से कि डाइट मेंटेन करने का क्या तरीका रहेगा? Like, should we only focus on protein or the other macronutrients and how it goes? नहीं, अभी कोई भी पर्सन हो, जब let's say if we consider the age of 18 to 25 group, ठीक है, इसमें दो टाइप के पीपल आएंगे. लाइक दो टाइप ऑफ पीपल इन द सेंस, एक सेगमेंट के लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल होगा, दे कैन एबल टू स्पेंड. इंडिया में डाइट करना या फिर न्यूट्रिशन कंज्यूम करना, ये इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस के ऊपर कम और सराउंडिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है. ने बोला ना कि if someone is telling that I am able to do that, I know that in 100 rupees we can able to get a good diet, we can able to consume it. If you remove the tiffin part like breakfast which is available in the market, अगर हम लोग ये सब चीज को एलिमिनेट कर रहे हैं और सही ऑप्शन को भी अगर हम लोग कंज्यूम करने लगे, तो बेसिक्स टू बेसिक्स करने में भी लिए 100 रुपया इज वेल इनफ इन 100 rupees. 100 rupees is well enough to consume the basic requirement. But the thing is, अगर साथ में 10 लोग अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एज में इन्फ्लुएंस 11th मेंबर को नहीं होगा. तो पॉइंट वहां है कि अगर 10 के 10 अगर एक फैमिली है, लेट्स से अगर फैमिली में 4 लोग हैं और उस फैमिली में अगर उसको ये अवेयरनेस है उनके घर में कि आई हैव टू कंज्यूम दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अगर वो हर मील में प्रोटीन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कौन से सोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस में उतना ज्यादा है या नहीं है, ये सब चीजों को बेसिक बैलेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो अपब्रिंगिंग अगर उस समय से सही रहेगा, ऑटोमेटिकली देयर इज अ चांस दैट दे विल end up more productive compared to the people those who are not able to eat or those who are not able to get that food easily. तो ये उसके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, राइट. तो अब इसमें जैसे कि मैं अभी एक फैक्टर बोला कि एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास ये अवेलेबल है. अब जो दूसरे ग्रुप है जिनके पास ये सोर्स या इनकम या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वो क्या करें? ठीक है, जब आप किसी भी चीजों को चेंज करना चाहते हो, व्हेन आई वांट टू बी फिट और आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, व्हाट आई विल डू, हम लोग कोई भी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर उस चीज को इंप्रूव करते हैं, लाइक से द जिम और मेडिटेशन एरिया, योगा, फिजिकल फिटनेस, रनिंग, रन क्लब, साइकिलिंग क्लब, ये सब चीजों में हम लोग ज्वाइन होते हैं. क्यों ज्वाइन होते हैं? बिकॉज द होल पॉइंट इज टू गेट इनटू अ कम्युनिटी वेयर द थिंग्स रिवॉल्व अराउंड इट. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस बाय जॉइनिंग. तो हम लोग का अगर इकोसिस्टम अगर वैसा है जहां पर हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो 11th पर्सन जो बाहर से आया आदमी रहेगा, उसके दिमाग में भी यही सभी चलेगा, वो फिर बाकी चीजों में ध्यान नहीं देगा. बराबर. तो कम्युनिटी का रहना ज्यादा जरूरी है. जैसे जैसे कम्युनिटी बिल्डअप होगा छोटे छोटे स्केल में, तो ऑटोमेटिकली जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है, क्योंकि देखो कितना भी आप, मैं मुंह से कितना भी बोल लूं या इंस्टाग्राम रील में आके या यूट्यूब में आके मैं कितना भी बोलूं, जब तक हम लोग साइंटिफिकली उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका आउटकम क्या है मालूम नहीं चलेगा. और वो कौन बता पाएगा? जो पर्सन एक्सपीरियंस किया हो, उसको ये ज्यादा आइडिया होगा ना, कितना भी हो, तो वही इस सबको बताएगा. तो जैसे जैसे कम्युनिटी इंप्रूव होते जाएगा, वैसे वैसे सब लोग उसको अप्लाई करेंगे. बराबर. लेकिन अगर कम्युनिटी में if someone wants to be a part of community, even they need to start somewhere, right? But I assume that most of the people, they have not started a fitness journey yet, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, there are around 1.6 billion people. लेकिन आप खुद ही देखोगे, I had this क्या बोलते हैं इसको, I had this analytics somewhere that in the population of 1.5 billion people, only 0.5%, 1%, 5% की access है. access, yeah, they go to the gym. Now, even in that 0.5%, there is the equal distribution between men and women, but there are many newcomers as well. So now, if someone is starting their fitness journey,
नो बैकग्राउंड, नो रूटीन, उनके लिए कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूजफुल रहेगा? और यू नो लाइक नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग रूटीन्स, लाइक ब्रो स्प्लिट हो गया, पुश पुल लेग्स हो गया, यू नो पीपल गेट इनटू दिस एट अ वेरी अर्ली स्टेज बट दे फॉरगेट अबाउट कंसिस्टेंसी एंड दे यू नो बर्न आउट लाइक दैट. तो और मैं बोला ना कि सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है. अगर सराउंडिंग में 10 लोग, अगर सब लोग फिटनेस में इन्वॉल्व है तो ऑटोमेटिकली होगा. थिंग ये है कि जो अब अगर मान लो कोई भी जिम का एक्सेस, अपन फर्स्ट इसको 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे. बराबर. फर्स्ट फेज ये है कि किसके लिए एक्सेसिबल है, कौन कौन करेगा, कैसा है जो एक्सेस कर पाएगा नहीं. सेकेंड फेज ये है कि एक्सेस करने के बाद में फिर अपने को क्या सिलेक्ट करना है. ठीक है. तो अब एक्सेस पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो जितने सारे स्टूडेंट है, आधे से ज्यादा अगर हम लोग कोई भी चीज को हम लोग पोस्ट करते हैं तो कमेंट्स कभी भी ये आते हैं कि मेरे पास जिम का एक्सेस नहीं है, जिम का कॉस्टिंग बहुत हाई है. जिम को आज भी अगर हम लोग 0.5% कंसिडर कर रहे हैं ओवरऑल में, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि जिम को आज के डेट में लग्जरी के जैसा ट्रीट किया जाता है, नॉट ए नेसेसिटी. ठीक है. तो इस चीज को चेंज करने के लिए धीरे धीरे चेंज करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि बिकॉज एक जिम को रन करना इज नॉट दैट प्रीटी इजी. ठीक है. तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो ज्यादा योगा को पुश करते हैं. इनिशियल स्टेज में यू बिल्ड अप डूइंग द योगा पार्ट वेयर यू कैन एबल टू मेंटली फिट, तो हम लोग दोनों पे मैनेज कर सके. तो जब जिम एक्सेसिबल करना है या बेसिक इस चीज को करना है, उसके लिए ये जो अपना करिकुलम है, जैसा गवर्नमेंट के एंड से ही यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन बनना जरूरी है कि इसमें कितना कितना, जैसे अभी मान लो फॉरेन कंट्रीज है, वहां पर स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स को जिम का जाना उतना होता है नहीं, पता नहीं, लेकिन उन लोग क्या है, उनके पास कॉलेज में ही एक्सेस होता है. ओके. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, तो उनके पास कॉलेज में स्कूल डेज में ही एक्सेस होता है. कोई फुटबॉल टीम में, कोई बास्केटबॉल टीम में, तो वहां पर उनको पर्टिकुलरली जिम सेशन मस्ट रहता है. करेक्ट. कि वहां पर एक जिम सेशन करना चाहिए. वहां उन लोग ग्रुप में होके एक्सप्लोसिव मूवमेंट ट्रेन करते हैं. तो जब हम लोग यंग एज में रहते हैं ना, तो यंग एज में हम लोग को ज्यादातर फंक्शनैलिटी पे काम करना ज्यादा जरूरी है. फंक्शनैलिटी इन द सेंस टू मूव फास्ट, कैसा मूव करना है, कैसे लिफ्ट करना है, ये बेसिक चीज रहता है, इस पे काम करना. इस चीज के लिए फर्स्ट क्या है, प्राइमरी चीज आपके पास हाथ पैर है, तो पहले क्या करोगे, पहले बेसिक रन से स्टार्ट करोगे. कुछ ना करने से बेटर कुछ करना चाहिए, तो बेसिक आप रन से स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे आपका बॉडी वेट ही आपके पास. तो सिंपल छोटे बेसिक कैलिस्थेनिक्स मूवमेंट जो है अगर आप कर सकते हो, तो इसमें भी कंडीशन ये है कि कई लोग उस चीज में भी नहीं कर पाते. मैं बात कर रहा हूँ 18 ईयर्स या 18 to 20 ईयर्स जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है. उनके लिए बोल रहा हूँ. जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है, तो जिम से बेटर ऑप्शन कोई है ही नहीं. जिम इज द प्लेस वेयर यू कैन एबल टू गेट एवरीथिंग. बट ये है कि वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे. उसमें मल्टीपल होगा. अभी किसी का स्कूल कहीं बाहर है, ठीक है, और वहां पर उसको अगर आसपास में जिम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो उसको खुद ही ट्रेन करना पड़ेगा. खुद ही ट्रेन करना पड़ेगा ना. तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, कोई डंबल्स बना लेता है, कोई अपने मर्जी से, कोई कुछ प्लेट्स को कुछ वही कुछ बनाते हैं ना, स्क्रैप से कुछ करना, सीमेंट बेस से कुछ बना लेते हैं. कई लोगों के पास अगर कॉलेज में जिम एक्सेस है, तो जिम में कोई डंबल नहीं है, कोई प्लेट नहीं है. तो ये स्कूल एज में, कॉलेज एज में मस्ट एंड मैंडेटरी वहां से इंप्लीमेंट होना चाहिए कि जिम सेशन या फिर एक फिजिकल फिटनेस एरेना वहां पर होना चाहिए, मस्ट एंड मैंडेटरी. और जिसको इवैल्यूएट करने के लिए हर साल में एक स्पोर्ट्स मीट उन लोग कंडक्ट करना चाहिए. और इसको भी ग्रेड्स, जैसे हम लोग ओवरऑल सेमेस्टर में जब ग्रेड्स मिलते हैं, इसके भी ग्रेड्स होने चाहिए. जब ये आएगा तो ऑटोमेटिकली पहले लोग फियर फैक्टर से स्टार्ट करेंगे कि मेरे को ग्रेड्स का लेना है. क्योंकि वो एज में हर कोई फिटनेस पे ऊपर ध्यान नहीं देगा ना. करेक्ट. लेकिन उनके दिमाग में क्या चलेगा, अपना इंडियन सिस्टम ग्रेड सिस्टम पे काम करता है, मार्क्स इस पे भी वैल्यू है. अब ये अगर तुम लोग इंटरमीडिएट एजुकेशन में ये इसको फिजिकल एजुकेशन पार्ट को नेसेसरी कर दो, और जैसे 12 सब्जेक्ट में 960 1000 मार्क फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक कर रहे हैं ना, तो इतने जितने भी है उसमें एक फिजिकल फिटनेस को ऐड करो, देखो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फर्स्ट सेकंड रैंक वाले ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे. और जो पेरेंट्स है वो अल्टीमेटली जाके मेंबरशिप्स कर देंगे, और अल्टीमेटली सबके सब वहां होंगे. कॉलेजेस जो होंगे उनको एक अपना इनबिल्ट प्लेस करना पड़ेगा जिम, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर ये चीज को हार्ड कर दिया हम लोग. क्या है कि ग्रेड सिस्टम ऐसा होगा और इसका इवैल्यूएशन कोई हम लोग नहीं करेंगे, कोई बाहर से आएंगे. लेकिन अभी बात ये आप बोल रहे हो सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का है. सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा फ्यूचर में, लेकिन अभी जैसे हम लोग हैं, हाँ, तो वही बोल रहे ना. हाँ, तो इस केस में अभी जैसे अभी ये एक कैटेगरी हम लोग बात किया जिसके पास एक्सेसिबल नहीं है. अब दूसरा कैटेगरी जो है जिनके पास एक्सेसिबल है, उन लोग क्या करना चाहिए. सिंपल थिंग है, अगर कोई भी पर्सन है जिनके पास जिम का एक्सेस है, राइट, सबसे पहला थिंग बेसिक्स क्या होता है, हम लोग बोलते हैं उसको गेट एनालिसिस. लाइक हाउ यू मूव.
हमारा बॉडी कैसा है, तुमको अपने बॉडी को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। Okay. ठीक है, तो जब भी आप जाओ जिम में तो वहां पर ट्रेनर्स होते हैं, आप उनसे पहले डिस्कस करो। मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेनर से आप डिस्कस करोगे थोड़ा बहुत गलत सीखोगे, ऐसा नहीं कि 100% सही होगा, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप चीजों को सुधार भी नहीं सको। तो कुछ ना करने से बेटर करना बेटर। ठीक है, तो आप जाओ, बेसिक जाओ, ट्रेनर में पूछो क्या क्या सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो बता रहा है उसको पहले आप ट्राई करो 2 दिन 3 दिन। ठीक है, समझो। और कभी भी हम लोग कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं क्या करना चाहिए, क्या बेटर है, क्या है। तो आजकल तो चैट जीपीटी भी अवेलेबल है। बराबर। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आप कोई भी चीज को आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप पहले लिखो चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट कि आई एम अ कंप्लीट बिगिनर, मेरे पास एक जिम का एक्सेसिबिलिटी है, आई वांट टू स्टार्ट द जिम, व्हाट शुड बी द बेसिक स्टेप्स व्हिच आई नीड टू फॉलो। ये अपने को पहले जानना चाहिए। Once you know the basic step that this is the important thing, तो वहां पर उसको लर्निंग फेज में आप लोग, नॉट लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड फेज। अब लर्निंग फेज में लोगे तो जब आप जिम में ज्वाइन करोगे, जाते साथ क्या करोगे, आप ट्रेनर से इंटरेक्ट करोगे कि मेरा आज फर्स्ट डे है, मेरे को क्या करना है। बराबर। तो यू नो ऑलरेडी कि मेरे को सीखने के लिए आया हूँ, ये माइंडसेट वहां पर आएगा। सिंस यू आर रिलाइंग ऑन रिसर्च और एप्लीकेशंस क्या क्या अवेलेबल है अपने पास, उस पर हम लोग रिलाई कर रहे हैं। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके बेसिस पे मेरे को जाना है। जब आप ट्रेनर से डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड करेगा, फिर वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप क्रॉस चेक करोगे घर जाके, फिर उससे फिर वापस आओगे, फिर क्रॉस चेक करोगे। तो जब ये क्रॉस चेकिंग बार बार चलेगा ना, इसमें ही आप नॉलेज गेन करोगे। और जब नॉलेज गेन करोगे तो क्या सही है क्या गलत है वो अल्टीमेटली 3 मंथ्स में आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लो स्प्लिट सही है या पुश पुल सही है या क्रॉसफिट बेस्ड सही है या फंक्शनल ट्रेनिंग सही है। एक्सरसाइजेस मल्टीपल सेट्स में है, लेकिन किसके लिए क्या सही है, कब सही है, ये डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस में, उनके लाइफस्टाइल में, वो अभी किस जगह पे खड़े। तो अगर ये इस चीज को इम्प्रूव करना है तो उनको पहले स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 1-1.5 महीना मैं पहले यही बोलता हूँ, ट्राई करो, पहले जानो समझो। अगर आप एक सिंपल मेथड में बोला जाए तो किसके पास अगर मसल मास कम है, बहुत ही कम है, तो अल्टीमेटली अगर वो 2 किलो भी वजन उठाएगा तो उसको मसल मास इंप्रूव होगा। अगर वो अपने बॉडी वेट से करेगा तो भी इंप्रूव होगा। यहाँ पर एक्सीलेंस का बात जब आता है कि मेरे को किसमें मैक्सिमम ऑप्टिमल सोर्स क्या अवेलेबल है, जिम में मेरे पास इक्विपमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसमें मैक्सिमम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तब वो बोलेगा कि हाँ अब इसमें एक एल्गोरिथम है, ये एक मेथड है जिसमें टेस्टेड है, ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, जिसमें रिजल्ट ज्यादा आता है, तब वो उस चीज पे काम करेगा। लेकिन जिसके पास है नहीं उसको तो पहले बेसिक्स तो करना चाहिए। बराबर। सो मेंशनिंग द एक्सीलेंस पार्ट, अभी जैसा आप बोले कि पहले सीखना पड़ेगा, सीख के इम्प्लीमेंट करोगे तो अपने आप एक्सपीरियंस से आपको वो एक बिल्ड होगा आपके बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन की, आई एम गुड इन दिस, सो नो आई कैन फर्दर गो इन दैट। बट बिगिनर्स क्या करते हैं यूजुअली कि जो भी आता है, अब जैसे आपने ये तो बोला कि ठीक है बॉडी को टेस्ट करो जानो, लेकिन यूजुअली क्या लोग ये इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, पहले हम आते हैं पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करते हैं, उस पर ही फोकस रहता है। लेकिन डज फिजिकल फिटनेस ओनली रिलाई ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आर देयर एनी अदर थिंग्स? सब चीज पे है, एंड्योरेंस रहना भी जरूरी है। लाइक एंड्योरेंस कैसा बोलने से, इसमें मस्कुलर एंड्योरेंस अलग है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अलग है। मस्कुलर एंड्योरेंस बोलने से हमारा मसल्स जिसको हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, बोला ना, ये इंडिविजुअल लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो पर्सन जो कुछ भी नहीं कर रहा उसके लिए 1 घंटा इंपॉर्टेंट है। अब वो 1 घंटे में उसको बनाना पड़ेगा एक पैटर्न कि इसमें मेरे को थोड़ा कार्डियोवास्कुलर में भी काम करना है, थोड़े अपने मसल स्ट्रेंथनिंग में भी काम करना है, थोड़े फंक्शनैलिटी मूवमेंट्स में भी काम करना है। Okay. लाइक अपना पूरा मोबिलिटी बॉडी को इस पे भी काम करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जब मालूम चलेगा, जब अपने आप को खुद हम लोग क्या है अपने को पता चलेगा। जब तक मैं कौन हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है नहीं है, तब तक मैं नहीं बोल सकता। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक बेसिक सेट ऑफ ब्लूप्रिंट बोलते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग है, हमारे जिम में हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक ब्लूप्रिंट डिजाइन करके रखते हैं जिसमें हम लोग हर पैरामीटर को कवर करें। उसके हिसाब से जब हम लोग 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ट्राई करते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि ओके ये पर्सन इस जगह पे लैगिंग है, मेरे को इसमें ज्यादा काम करना है। फिर हम लोग उसको बेस बना के उसको प्रायोरिटाइज करके चीजों को उसके हिसाब से चेंजेस करते हैं। बट ये कैसा है बोलने से, इसमें भी टाइम लगता है। कोई भी चीज को, बॉडी को आप लोग 1 दिन में चेंज कर ही नहीं सकते, इट विल टेक टाइम ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मान लो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो डायरेक्टली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे पुश करना चाह रहा है या डायरेक्टली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसका रिक्वायरमेंट है या नहीं ये जानना थोड़ा उसके लिए टफ है। इसीलिए क्या करते हैं जिम्स में, जब भी हम लोग बोला ना कि चेक पॉइंट बनाना है करके, तो चेक पॉइंट जब भी आप चैट जीपीटी में कोई भी प्रॉम्प्ट डालोगे, तो लेट्स से इफ आई ड्राफ्टेड अ प्रॉम्प्ट लाइक आई एम अ कंप्लीट बिगिनर, like I have zero knowledge about fitness, I want to improve my fitness बोला, only fitness,
स्ट्रेंथ, उसमें डिटेलिंग में मत जाओ. Fitness as a ओनली whole. फिटनेस. व्हाट आर द असेसमेंट और चेक पॉइंट विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ. Okay. ये बेसिक प्रॉम्प्ट डालो, अपने को ऑटोमेटिकली आएगा कि फिटनेस में क्या क्या पैरामीटर्स है. फिर हर पैरामीटर को पॉइंट करो, हर एक एक दिन पे उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करो कि ये मेरे को आज इस पे काम करना, आज इस पे काम करना, आज इस पे काम करो. एक हफ्ता लो, नोट डाउन करो. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सब हवा में करते हैं. वो बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी भी. अभी जैसे जब हम लोग जिस टाइम पे ट्रेनिंग करते थे कि हम लोग के लिए एक मैंडेटरी था कि वी नीड टू कैरी अ बुक, वी नीड टू कैरी अ डाइट, हम लोग सब चीज लेके जाते थे. अच्छा. तो अभी वो एथलीट माइंडसेट जब तक आएगा नहीं तब तक होगा नहीं. तो एथलीट माइंडसेट तब आएगा जब ऑटोमेटिकली सब सराउंडिंग में होंगे. ओके. तो धीरे धीरे आएंगे. लेकिन कमिंग ऑन टू द एथलीट माइंडसेट पार्ट, व्हाट आई फील इज कि ठीक है, कोई बंदा अगर स्पोर्ट्स में है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स में कोई भी जैसे मान लो वेट लिफ्टिंग हो गया, या तो कोई टीम स्पोर्ट हो गया, इंडिविजुअल स्पोर्ट हो गया, ही ऑटोमेटिकली लर्न्स अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट कंसिस्टेंसी. वो तो आएगी. हाँ, लेकिन हमारे जैसे लोग जो एज स्टूडेंट्स मान लो, स्टूडेंट्स नीड टू डू देयर पार्ट एज वेल रिगार्डिंग द स्टडीज, एंड दे आर ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड देयर. सो हाउ कैन दे bring that kind of focus or the athlete mindset in them? इसी बोला ना कि when you know the outcomes, जब अपने को पता है कि मेरे को इस चीज में ये चीज आएगा, मिलेगा, and when I know that outcome is going to impact my overall, जब अपने ओवरऑल बॉडी मतलब ओवरऑल चीजों को, लाइक एजुकेशन पॉइंट ले लो, मेंटली या फिजिकली, ओवरऑल बॉडी को अगर चेंज कर रहा है, जब मेरे को पता होगा, देन ओनली आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट थिंग्स. लाइक प्रीवियसली पीपल वर मोर लाइक फिटनेस तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, अभी तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दो. बराबर. राइट. लेकिन अभी क्या बोलते हैं कि फिटनेस ऑफ 1 hour इज नेसेसिटी. क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा कॉग्निटिव फंक्शन, लाइक ब्रेन का जो यूजेज है वो ज्यादा बढ़ता है. ओके. तो जब ये कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होगा तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो तुम लोग अच्छे से पढ़ पाओगे. ये चीजों को पेरेंट्स को अब समझ में आ रहा है, तो इसीलिए आज के डेट में देखो उस चीज को मैंडेटरी कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग जाओ. मैं बोला ना, इसका रूट कॉज जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे. अगर वहां पर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिए कि ये करिकुलम का पार्ट है और इसमें ग्रेड्स मिलेंगे, इसी से तुम लोग इम्प्रूव कर सकते हो, ये ग्रेड्स मैंडेटरी है, अगर इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज चेंज हो जाएगा. लेकिन जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक अगर हम लोग को अपने ऊपर रिलाई करना है, अगर हम लोग को जनरली हम लोग को अगर फिटनेस करना है या फिर 1 घंटा टाइम कैसे मैनेज करना है, तो हम लोग को नॉलेज बेसिक रहना चाहिए कि इससे हम लोग को क्या क्या मिलेगा, आउटकम क्या है, और प्रोडक्टिविटी हम लोग को कैसे इंप्रूव होगा. तो साइकोलॉजिकल थिंग को चेंज करने के लिए जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक जानोगे नहीं, तब तक उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे. जिसको पता है कि इससे मेरा चीज इंप्रूव हो गया, वो अल्टीमेटली देखो, आप आर्मी साइड देख लो, जितने भी है एनडीए कोर्स करने वाले जितने भी हैं, उनको क्यों है फिजिकल फिटनेस मैंडेटरी स्टार्टिंग से? बिकॉज उनको पता है कि इसी से अपना कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है, जहाँ पर वो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेंगे. प्रोएक्टिव रहना या फिर टैक्टिकल सिचुएशंस में अपने आप को सडन रिस्पॉन्स कैसे करना, इस चीजों के बारे में जानने के लिए सबको उसको ब्रेन को उस चीज का आदत कराना पड़ता है कि मेरे को ये चीज करते रहना है रेगुलर बेसिस में. जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तब आपका रिस्पॉन्स रेट भी बढ़ेगा, तो प्रोडक्टिविटी वैसे ही बढ़ता है. बेसिकली आप किसी चीज को कर रहे हो. समिंग अप इन फ्यू वर्ड्स, हैबिट बनाना है उसका. वो हैबिट के ऊपर है. तो हैबिट कब बनेगा? जब उसका बारे में अपने को पता है कि ये मेरा नेसेसिटी है, ये प्रायोरिटाइज करेंगे तभी उस चीज का इम्पैक्ट हम लोग या फिर उससे जो आने वाला आउटकम है उसको हम लोग ले पाएंगे. जब तक हम लोग उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो वहां से भूल जाओ, आउटकम तो भूल जाओ, फिर पहले रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट में चले जाएंगे. सो उसको ब्रेक करना होगा. हाँ. So to break the result oriented mindset, should we get into identity based, like I am a person who goes to the gym daily, that kind of mindset होना चाहिए? ऐसा रहना चाहिए कि चलो आज जिम जा रहे तो इतना वेट उठाने का है? नहीं, देखो जिम में वेट कितना उठा रहे हैं या फिर मैं जिम गोवर हूँ, ये जरूरी नहीं है. बोला ना, नेसेसिटी पार्ट क्या है कि अगर मेरे को मेरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, मेरा हेल्थ, अगर मेरा जो एजुकेशन पॉइंट है, अगर मैं एजुकेशन साइड में मैं ज्यादा फोकस्ड हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे लिए फिटनेस का मतलब क्या है. Like fitness is a 1 hour thing which I am working on it, which going to help for my physical like my mental health at the same time my education point. अगर ये मेरे को क्लैरिटी है
सो नो थिंग्स और नथिंग कैन एबल टू डिस्टर्ब मी। वहां पर फिर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं अपने आप को एक टैगलाइन नहीं दूंगा कि मेरे को ये चाहिए या मेरे को वो चाहिए। लेकिन अगर हम लोग मेडिकल कंडीशन में हैं ऑलरेडी, पर मैं ओबीज इंडिविजुअल, मैं बहुत ज्यादा वेट हूँ, तो अगर मेरे को इस चीज पे काम करना है तो ऑब्वियसली मेरे को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना। तब मैं इस कैटेगरी में फॉल करूंगा कि मेरे लिए क्या है या अभी क्या है। ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 घंटा बेसिक इसको प्रायोरिटी है या नेसेसिटी है। दोनों डिफरेंट चीज है। प्रायोरिटी है मतलब इस पे करना है तो करना है, नेसेसिटी है मतलब ये नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि अगर ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी पैरामीटर्स जो है वो सही होंगे। तो इस दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी, जो इसको डिफरेंस समझ गया ऑटोमेटिक एक्सेल करेगा। सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि फिजिकल हेल्थ से आपका मेंटल हेल्थ भी बढ़ता है, राइट? वो भी जरूरी। So talking about aerobic exercises, I have done a research. I'll just read it out to you. Aerobic exercises often don't get the spotlight like weight training or HIIT do, but are they actually underrated? Because in nearly 100 trials with over 5,600 people, moderate to intense aerobic workouts significantly reduced symptoms in 11 mental health disorders. Now, why aren't we talking more about doing more cardio and focusing different areas of fitness? Since it improves our mental health as well. Okay, so see, the one point which we need to consideration is like earlier I said, fitness was a fun activity and it should be a fun activity. ठीक है, ये पॉइंट था बराबर पहला स्टार्टिंग में। तो अपन उसी पे ही कंट्रोल करेंगे कि सी द करिकुलम पार्ट वी कांट एबल टू चेंज, बट जब हम लोग स्कूलिंग में थे एट दैट टाइम एरोबिक एक्सरसाइजेस जो हम लोग जो भी हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज करते थे वो हमको ये भी पता नहीं था कि वो एरोबिक एक्सरसाइज है या एनारोबिक एक्सरसाइज है। करेक्ट, ठीक है, जैसे 2 पैरामीटर है, एरोबिक एनारोबिक है। तो जब हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, राइट, तो हम लोग वो एरोबिक फॉर्म में ही खेलते। कोई भी एक्टिविटी, एरोबिक मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी जो 1 मिनट से ज्यादा जा रहा है, राइट, तो वो 1 मिनट से ज्यादा जहां पर हम लोग का हार्ट रेट एलिवेट हो रहा है, सेम सेट ऑफ एक्सरसाइज या सेम एक्टिविटी है जहां हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर आता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को यही नहीं पता है कि हम लोग एरोबिक कर रहे हैं या एनारोबिक कर रहे हैं, राइट, करेक्ट। लेकिन हम लोग उस समय फिटनेस का पॉइंट क्या था, फिटनेस हम लोग के लिए एक फन था, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था, जहां पर हम लोग उसको खेल के जैसे दिखते थे, राइट, इट वाज अ फन, जहां पर एरोबिक एक्सरसाइज होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, क्योंकि स्कूलिंग एरिया में एरोबिक एक्सरसाइजेस का कोई है ही नहीं आज के डेट में। बोला या तो आफ्टर यार 10th क्लास, सेकेंडरी एजुकेशन जब खत्म होता है और जब हम लोग हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे आते हैं तो वो पॉइंट में वो चीज अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड्स आज के डेट्स में अवेलेबल नहीं है, उतना अवेलेबिलिटी नहीं है। तो क्या है, सेकेंड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस कहाँ पर अवेलेबल है, तो वहां पर क्या है, एक जिम ही एक ऑप्शन है। जिम डिजाइन ही ऐसा हुआ है जहां पर एनारोबिक एक्सरसाइजेस को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है कंपैरेटिवली एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, क्यों है ये प्रॉब्लम, क्योंकि देखो जब तक फिटनेस एक फन पॉइंट पे है तो उस चीज को हम लोग बेटर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिम एक ऐसा है जब एक क्लोज इन्वायरमेंट में कर रहे हैं तो वहां पर वो सेल्फ बेस्ड है, वो मी टू मी का कंसिडरेशन ज्यादा होता है, ना कि एक टीम स्पिरिट या टीम स्पोर्ट जैसा होता है। तो इसीलिए ना कि जिम को एक कम्युनिटी का टैगलाइन दिया जाता है। कम्युनिटी है, जब आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व होके सबके साथ करते हो तब वो फन एलिमेंट आता है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल में कर रहे हो तो फन एलिमेंट को लाना उतना पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां अपने आप को मेंटली आपको इतना स्टेबल बनना पड़ता है कि जहां आपका लर्निंग वही आपका फन बने। और लर्निंग फन तब बनेगा जब हम लोग स्टैटिस्टिक जो स्टैट्स है उसके ऊपर हम लोग जब काम करेंगे। इसलिए क्या है, जब फिटनेस के फन आज के डेट में उस लोगों के लिए है जो ऑलमोस्ट फिटनेस में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि उनके पास लर्निंग एक डे टू डे पार्ट है। What do you mean by experience there? एक्सपीरियंस मतलब अगर हम लोग अभी मैं कोई भी चीज को सीख रहा हूँ, राइट, तो स्टार्टिंग चीज में क्या है कि मैं जब सीखने जाऊंगा तो या तो मैं उसको फोर्सफुली कर रहा हूँ या तो मैं उससे कुछ आउटकम लाने के लिए कर रहा हूँ। करेक्ट, स्टार्टिंग पॉइंट वही रहता है, मेरे को कुछ चाहिए मैं इसीलिए उस चीज को लेता हूँ। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे उस चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर डिटेलिंग में घुसते जाते तो जहां पर लर्निंग आ गया तो वहां पर हम लोग को वहां पर उसमें से वो लर्निंग में छोटे छोटे फन एलिमेंट्स मिलते हैं जहां उस चीज को हम लोग एंजॉय करते हैं। तो जैसे जैसे एंजॉयमेंट बढ़ता है तो हम लोग उसको डेली बेसिस पे करना चालू करते हैं। तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, एक 6 से 8 महीने के बाद में हम लोग अपने आप को एक्सपीरियंस मानते हैं। एक्सपीरियंस जब होते हैं तो हम लोग लगता है कि हाँ
अब मेरे पास बेसिक एजुकेशन है, मेरे पास नॉलेज है, वही नॉलेज कॉन्फिडेंस को अपने को शो अप करता है, और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तब आप ऑटोमेटिकली वो लर्निंग को ही और बेटर करने के लिए, उसमें और सीखने के लिए आप कोशिश करते हो। लेकिन जब तक लर्निंग जो पॉइंट है वो जब तक चलेगा तब तक ही फन रहेगा, अगर लर्निंग उसमें से हटा दिए तो फन नहीं है। अब जैसे अगर मेरा कंसिडरेशन भी मैं लूंगा तो मैं बोलता हूँ, मैं अपने लिए अपना एक टैगलाइन रखा हूँ ओके कि मैं हमेशा उस चीज को ही फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा हम लोग के स्टूडेंट्स जो है उनसे भी मैं यही डिस्कस करता हूँ कि आई स्टार्ट माई डे एज अ टीचर बट आई एंड माई डे एज अ स्टूडेंट। क्योंकि मैं हर दिन किसी ना किसी लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, कि मैं अपने आप में इतना सेटल्ड हूँ आज के डेट में कि मेरे को पता है कि मैं जो भी जानता हूँ वो अभी भी बहुत बेर मिनिमम है, मेरे को और बहुत कुछ सीखना है। भले बाकी लोगों के लिए मेरे पास कितना नॉलेज है क्या है, ये अपन सब्जेक्टिव टू पर्सन है, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि मेरे को कितना सीखना है, मेरा माइंडसेट ये है कि मेरे को सीखना इसीलिए है ताकि मैं दूसरों को सिखा सके। Right. तो वहां पर एक लर्निंग फैक्ट मेरे लिए एक फन है और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों एडेड है। तो मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये चीज ईजी हो रहा है, ओके तभी मैं उसमें लॉन्जिविटी निकाल पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे में ये फन एलिमेंट या लर्निंग पार्ट नहीं है तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये चीज बोरिंग होगा, और जब बोरिंग होगा तो इनसिक्योरिटी बिल्डअप होना चालू होगा। या तो दो स्टेट में बॉडी काम करेगा, या तो मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर होऊंगा, मेंटली इनसिक्योर होऊंगा कि मेरे को मैं कहीं पीछे तो नहीं छूट गया, या तो मैं बहुत ज्यादा एरोगेंस में आ जाऊंगा कि मेरे को सब कुछ पता है। ये दो स्टेट ऑफ माइंड होता है। तो ये जो रिसर्च है ये उसी को डिक्टेट कर रहा है कि बहुत सारे लोग एक क्लोज इन्वायरमेंट में आने के बाद में एनारोबिक एक्सरसाइज करने लगते हैं। जब आप एनारोबिक एक्सरसाइजेस करते हो तो आप क्लोज इन्वॉल्वमेंट में करते हो, जहां पर आप अपने आप से ही ज्यादा इन्वॉल्व हो, और वहां पर जब आपको पता नहीं है कि सामने वाला कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसा है, तो वहां पर या तो एरोगेंस बढ़ेगा या तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो लेकिन आप कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो ना। कम्युनिटी का पार्ट कैसे होगा? जब आप ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करोगे जहां पर होगा। अब जैसे हम लोग ही ले लो, मेरा प्रायोरिटी डे 1 से हमारे जिम में यही रहता है कि मेरे को जिम में जो टॉक्स है, जो डिस्कशंस है, वो अच्छे टॉक्स होने चाहिए, क्वेश्चंस जो निकल रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। मेरा काम जो स्टूडेंट्स जो हेसिटेट हो रहे हैं, जो आंसर नहीं भी कर पा रहे, मेरा काम ये है कि मैं उनसे जो क्वेश्चन वो नहीं पूछ पा रहे, मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि उनके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो जब जिम में टॉक्स ऐसे चल रहे हैं जहां पर हर कोई ये बात कर रहा है कि एक लेवल थोड़ा ऊपर लेवल का है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि मेरे को पतला होना है या मेरे को मोटा होना है, मेरे को फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, ये टॉपिक नहीं है। उन लोग प्रोसेस के अंदर में बात कर रहे हैं कि मेरा मैक्रोस कितना होना चाहिए, अभी मेरे गोल के हिसाब से मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो क्या है कि वो अपने आप में सेटल्ड है। आप सेटल्ड तभी होगे जब आप कम्युनिटी का पार्ट हो, जहां पर आपका कंपटीशन बाकी लोग से बेटर होने से कम है, उतना नहीं है, लेकिन आपको अपने आप में बेटर होने में ज्यादा है, और आप सेटल्ड हो। अभी आधे से ज्यादा स्टूडेंट अगर हम लोग के जिम को ये बोलते हैं कि मेरा सेकंड होम है करके बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका पता है ये मेरा होम ग्राउंड है, यहाँ पर मैं सही करूं या गलत करूं मेरे को कोई जजमेंट नहीं करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा चीज क्या, उनको पता है कि मेरा होम ग्राउंड है तो यहाँ पर मैं कभी भी फेल भी होऊंगा तो यहाँ पर कोई मेरे को टीज नहीं करेगा, यहाँ पर अप्रिसिएशन पॉइंट रहेगा तो मेरे को सीखने के लिए मिलेगा। तो ये अगर जिम का इन्वायरमेंट अगर ऐसा होगा जहां पर सब इन्वॉल्व है तब सही है। अब यही रिसर्च है, इस रिसर्च में एक काम ये करने बोलो कि एक कम्युनिटी को लो और उनको फिर फिटनेस करवाओ। यही एनारोबिक एक्सरसाइजेस देखो, उन लोग एक दूसरे से बात करेंगे, कुछ ना कुछ फन होते रहेगा, कुछ ना कुछ चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि अपलिफ्टमेंट दोनों एंड से है। एक कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि जहां पर एक कैटेगरी के लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा लो होंगे, एक बहुत ज्यादा अचीवर होंगे, एक बहुत ज्यादा लो अचीवर होंगे। ये कैटेगरी का मिक्स कहाँ होगा? जब ये एक साथ जुड़ेंगे, वहां पर इनके प्रोस कॉन्स जो है ये बाहर निकलेंगे, जब एक दूसरे से बात करेंगे तब जाके होगा। ये कहाँ होगा? जब सेम लाइक माइंडेड पीपल एक जगह पे होंगे। वो प्रोवाइड करने का काम किसका है? वो जिम का काम है। तो जिम में अगर ये कम्युनिटी इवेंट्स हो रहे हैं या कम्युनिटी में ज्यादा लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, फिटनेस अवेयरनेस कैंप रख रहे हैं, ये सब अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, डाइट के बारे में डिस्कस हो रहा है, सो मे बी शायद 2-3 ऐसे होंगे जो उसको उतना प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग ग्रुप में खेल रहे, 90-100 के जब बात कर रहे हैं तो 2-3 के ऊपर हम लोग उतना मैटर स्टार्टिंग बेसिस में नहीं पड़ेगा। हमारा गोल ये रहेगा कि 90 मेंबर्स को कन्वर्ट करें, क्योंकि जब पता है जब 90 मेंबर्स उस माइंडसेट में आ गए हैं तो बाकी 3-4 को लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। इन्फ्लुएंस होता है ना ऑटोमेटिकली, तो इन्फ्लुएंस से वो लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, अपना सिस्टम सही तरीके से डिजाइन नहीं करूंगा तो अल्टीमेटली मैं वो कम्युनिटी को ऐसा बना नहीं पाऊंगा। अगर देखो आज के डेट में मल्टीपल कॉम्पिटिशंस होते हैं अपने हैदराबाद सराउंडिंग में। रिगार्डिंग
कोई भी कॉम्पिटिशन इन द सेंस कि जिम का कॉम्पिटिशन चल रहा है, कॉम्पिटिशन इसमें पावर लिफ्टिंग इवेंट होगा, कोई भी Okay. फिटनेस इवेंट, Any ओवरऑल fitness फिटनेस इवेंट पकड़ लो, ठीक है। आज के डेट में कितने भी कॉम्पिटिशन्स देख लो, जितने, मैं गारंटी प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, आप लोग, तू तो है ही अपने जिम का ही पार्ट है, तेरे को भी ये बात पता ही होगा, कितने भी जिम रहे दो, जितना हम लोग फिटनेस इवेंट कंडक्ट करते हैं, जितने सारे हम लोग के एक्टिविटी होते हैं, जितने अपने बेस के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उतने किसी जिम में नहीं करते, किसी जिम में नहीं करते। क्यों नहीं करते? अभी हम लोग को दूसरे जगह कंपटीशन जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम लोग के पास में अपने इतने सारे कंपटीशन रीजंस है, इतने सारे स्टूडेंट्स है कि हम लोग एक दिन में कंपटीशन कंडक्ट ही नहीं कर पाते, हम लोग को 2 या 3 दिन लगता है। बराबर, यस, ठीक है। और जिम में कंपटीशन मतलब अभी कोई भी जिम में अगर कोई भी इवेंट रख रहे हैं तो अगर 200-300 लोग हैं तो पार्टिसिपेशन रेट कितना रहता है? 5%, 5, 10, 12 मैक्स। हाँ, और क्या, इससे ज्यादा रहता नहीं है। अब वही हम लोग अगर जब कंपटीशन करते हैं तो हम लोग का सिर्फ, हम लोग को बाहर से स्टूडेंट का जरूरत ही नहीं है, हम लोग का अपने वाले ही इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहते हैं, एक एक बच्चे ऐसे हैं, इतने ज्यादा इन्वॉल्व है कि हम लोग के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है कि हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे दे जहां पर एक लोग एक्सेल करे, रॉन्ग साइड में ना जाए, ईगो लिफ्टिंग ना करे, प्लस उन लोग अपने आप में सेटल्ड हो और उसको एंजॉय करे। तो उनका कॉम्पिटिशन इस लेवल में हाई है, इसीलिए जब हम लोग के लोग अगर बाहर जाते हैं कोई कंपटीशन खेलने के लिए तो इजीली जीत जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि हम लोग तो सब किए हुए हैं। तो ये इन्वायरमेंट, जिम का डिपेंडेंसी जिम के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है कि वो कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कमिंग बैक टू पार्ट वेयर यू सेड कि हम एक्सरसाइज के फन के लिए जो करते हैं उसमें हम ज्यादा इम्पैक्ट भी देखते हैं। नाउ व्हाट आई हैव सीन इज, और व्हाट आई हैव रेड अबाउट फिटनेस इज कि व्हेन यू डू इट फॉर फन, योर मेंटल हेल्थ टेंड्स टू गेट बेटर विथ इट। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अगर फिटनेस के फन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इट इज नॉट अ बर्डन टू अस, इट एक्चुअली uplifts our mood, and our day-to-day productivity, as mentioned earlier, also increases, right? But what is the threshold, where the fitness for fun becomes a part of competition? Like, जैसे आपने ईगो लिफ्टिंग की बात की थी अभी, हम अपने फन में ठीक है, हम अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम उसमें, लाइक मैंने PR अपना डेडलिफ्ट का ब्रेक किया, ऐसा चल रहा है आगे। बट वंस वी स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद अदर्स, नो, आई नीड टू गेट बेटर देन हिम, वो वाले, इज दैट अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट? एंड इफ इट इज अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, हाउ डज इट अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ देयर? सी, ये बोला ना कि ये घूम फिर के बात वहीं आता है कि एक कम्युनिटी में इन्वायरमेंट कैसा है। वहां पर अगर इन्वायरमेंट ऐसा है कि जहां पर लो अचीवर और हाई अचीवर दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, जहां का ट्रेनिंग इन्वायरमेंट अपने आप में बहुत सेटल्ड है, जहां अपलिफ्टमेंट के अलावा जजमेंट के बारे में बात हो ही नहीं रहा है, तो वहां पर ईगो लिफ्टिंग का पॉइंट आएगा ही नहीं। Okay. नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर लोग प्रोसेस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है कि जो सामने वाला है वो भी स्टैट्स के ऊपर बात कर रहा है, उसके जो थर्ड पर्सन है वो भी स्टैट के ऊपर है, भले वो अंडर अचीवर है, ओवर अचीवर है। तो जब जो पर्सन अपने आप में बहुत ज्यादा सेटल्ड है, तो वो पर्सन जो सामने वाला जो अंडर अचीवर है उसको ये नहीं बोलेगा कि तू इतना कम वेट क्यों उठा रहा है, वेट बढ़ाना मारना, ऐसा नहीं बोलेगा। वो उसको पहले गाइड करेगा ये पॉइंट में कि भाई तेरा ये है अभी पोजीशन, इस पोजीशन के हिसाब से तेरे को ये वेट लेना चाहिए, तो सामने वाला भी उस चीज को समझेगा। और जो साथ में जो ट्रेनर रहेंगे, क्योंकि सब एक ही ग्रुप का पार्ट है, तो ट्रेनर भी उस बात को मानेगा, क्योंकि नॉलेज पॉइंट सेम है। जब नॉलेज पॉइंट वेरिएबल बनते जाएंगे तब जाके वो ये कॉन्सेप्ट जो है अपना ईगो लिफ्टिंग जो है वो बढ़ेगा। ईगो लिफ्टिंग को ब्रेक करना या इसको टॉक्सिक में बदलने का सिंपल एक ही सॉल्यूशन है, अपने आप में सेटल्ड होना कि मैं कहाँ हूँ, मेरे को पता रहना चाहिए, मेरे को क्या करना है पता रहना चाहिए, उसके लिए मेरे को कौन से पर्सन के पास जाना है वो पता रहना चाहिए। आपका पर्सन अगर अपने आप में सेटल्ड है, अगर उसके ग्रुप में हर पॉइंट के लोग हैं तो ही होगा। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन बेटर कर रहा है, एक ट्रेनर जो है, जिम का भी एक ट्रेनर रहता है, उसका भी माइंडसेट ऐसा ही रहना चाहिए, जो अच्छा कर रहे हैं वो तो कैसे भी अच्छा करेंगी, लेकिन जो पर्सन जो बहुत ज्यादा अंडर अचीवर है, जो नहीं कर पा रहा है, उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उसमें मेंटल हेल्थ भी हो सकता है। वो आ रहा है जिम लेकिन फोर्सफुली आ रहा है, उसके लिए वो फन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई नहीं है। तो ये आप ट्रेनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ मिलके उसके कॉन्फिडेंस लेवल को एलिवेट करे, उसको कम्युनिटी का पार्ट बनाए, तब जाके उस चीज को एंजॉय करना चालू करेगा। ये थोड़े जगह पे ये होता है, क्यों हो पाता है? क्योंकि वो अननोइंगली एक कम्युनिटी का पार्ट है। थोड़े जगह में ये ब्लूप्रिंट ही है कि हमको ऐसे ही काम करना है। जैसे हमारा जिम का अपना ब्लूप्रिंट यही है कि हमको ऐसे ही काम करना है। हम लोग को ज्यादा
एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के ऊपर ध्यान रहता है कि सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, नहीं ये नहीं रहता है कि ये ज्यादा कर रहा है वो कम कर रहा है। तो ये सेटल्ड पॉइंट जो है ये तभी अचीव होगा जब सब ग्रुप का माइंडसेट एक जैसा हो। वो माइंडसेट तभी आएगा जब एक सेट ऑफ ब्लूप्रिंट होगा कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ये करना चाहिए, तेरे लिए ये काम कर रहा है, मेरे लिए ये काम कर रहा है। इसके लिए कोई पर्सन रहना चाहिए, उसी को हम लोग ट्रेनर बोलते हैं ना। बिना ट्रेनिंग के तो काम नहीं होगा। तो आपको अपने ऊपर हमेशा, इसमें ही नहीं कभी भी रहने दो, किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में हो, मैं हर किसी पर्सन को यही बोलता हूँ कि आपको अपने ऊपर एक पर्सन हमेशा रखना चाहिए जो आपका मेंटर हो। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई बाहर वाला भी हो सकता है, लेकिन ये होना चाहिए कि आपको उसका इन एंड आउट पता हो और आप उसके पास डायरेक्टली आंख बंद करके जाओ और बोलो। और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि उसके एंड से जो भी वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो 100% मेरे लिए बेटर ही होगा। अगर मेरे में ये कॉन्फिडेंस है तो मैं अपने मेंटर को, मैं चाहे कुछ भी हो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने मेंटर को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं ग्राउंड जीरो में भी जाऊंगा तो मेरा मेंटर ही है जो मेरे को वहां से निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास मेरा इन एंड आउट पता है कि मैं क्या हूँ कैसा। तो प्रायोरिटी नंबर 1 मेंटर का रोल ज्यादा है, जो ट्रेनर या मेंटर है उसके लिए। तो उससे आपको अटैच होना ज्यादा जरूरी है। कहीं भी हो, कुछ भी हो, अपने ऊपर एक पर्सन को अगर हम लोग रख रहे हैं, वो आपको हर एक फेजेस ऑफ लाइफ में गाइड करेगा। और वो जो भी मेंटर आप रख रहे हो, आप अपने ग्रुप के लोगों को नहीं रखने चाहिए। एक होता है ना कैटेगरी टीनेजर्स, उसके बाद फिर एक आता है एडल्ट फेज, फिर उसके बाद फिर एक और उसके ऊपर जो एज वाला 35 प्लस। तो अगर मैं मान लो 30 का ईयर्स का हूं तो मेरा एज ग्रुप के जो मेरा मेंटर होना चाहिए वो 35 प्लस वाले होने चाहिए। अगर मैं 15 या 20 साल का हूं तो मेरा मेंटर 20 से 22 साल होना चाहिए। 5 से 10 साल के एज ग्रुप, 5 to 10 ईयर्स के एज ग्रुप में ही मेंटर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके इस प्रेजेंट टाइम के, इस जनरेशन के हिसाब से वो फेजेस को देख के निकला हुआ। हाँ। वो ज्यादा आपको बता पाएगा, ना कि पर्सन जो 35 अबव है। उसके टाइम में, उस टाइम का सिचुएशन अलग था, तो आपके सिचुएशन को सही तरीके से जज नहीं कर पाया। इसीलिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, जूनियर्स एंड सीनियर्स। Okay. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो सीनियर्स रहते हैं उनको पता है कि प्रीवियस ईयर्स में क्या था, और सीनियर्स जूनियर्स को उसी चीज पे सपोर्ट करते हैं। और ये कल्चर भी इसलिए बना है कि जूनियर सीनियर्स को उसी पॉइंट पे रेस्पेक्ट भी देते हैं। करेक्ट, ठीक है, यही बना। क्यों बना? इसलिए बना। तो जब ये चीज स्कूलिंग में है तो वो जिम में भी वही चीज होना चाहिए। जिम को भी लोगों को एज अ स्कूल ट्रीट करना जरूरी है। ये ऐसा जगह नहीं है जहां आप अपना आउटरीच को शो कर रहे हो या आप मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हो। एक लर्निंग प्लेस है। आप इधर यहाँ पर आप क्या करते हो? फीस पे करते हो, ठीक है, बिल पे नहीं करते हो, फीस पे करते हो। फीस पे कर रहे हैं। क्यों? फीस कहाँ पे करते हैं? जहां पर आपको सीखते हो वहां पर आप फीस पे करते हो। तो जब उसको फीस का टर्मिनोलॉजी दिया गया है, जहां पर वहां पे एक लर्निंग है, जहां पर एक पूरा एक एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पर हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है, हर अपने अपने में लगा हुआ है, एक अलग एनवायरनमेंट चल रहा है, तो आपको इस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप उस प्लेस के लिए कितने रेस्पेक्टेबल हो। जब रेस्पेक्टेबल पॉइंट रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली लर्निंग फेज में जाओगे, लर्निंग को प्रायोरिटी करोगे और मेंटर अपने आप चूज करोगे। मेंटर हर फेजेस में अलग अलग होते हैं, बराबर, ठीक है। तो एक पर्सन का अगर मेरा मेंटर आज 5 साल के गैप वाला है तो मैं भी तो बड़ा होऊंगा। तो मैं किसी का मेंटर आज के डेट में हूँ, मेरा मेंटर कोई और है, उनका मेंटर कोई और है। तो एक पर्सन के ऊपर हर कोई रिलायड है। इट इज अ साइकिल। हाँ, ये साइकिल है और साइकिल होना भी चाहिए, यही सही है। आप अकेले दम पे हर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कर भी रहे हो तो भी आप सही जगह पे हो या नहीं हो आपको पता नहीं। आपको कोई बोलने वाला नहीं है। और बोलने वाले का मतलब ये 2 तरीके के भी होते हैं। बोलने वाले का मतलब ये है कि एक जो है जो आपको एवरीडे क्रिटिसाइज कर रहा है, और एक ये है जो आपको हर दिन आपको अपलिफ्ट कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, मतलब हाँ, ही इज शोइंग यू द वे, हाँ, गाइड वाले। तो दोनों एंड में गलत है। मेंटर ऐसा होना चाहिए तो दोनों के बीच का हो। हाँ, जहां पर गलत कर रहा है वहां सुनाना है तो सुनाएगा, क्रिटिसाइज भी करेगा, और जहां पर सही है वहां अपलिफ्ट भी करेगा। तो मेंटर इजीली मिलते नहीं है आज के डेट में, इजीली किसी के लिए नहीं मिलते। वो आपको बहुत टाइम लगता है खोजने के लिए सही मेंटर को ना। आप किसी को भी मैं अपना मेंटर मान लूंगा, वो करूंगा, और वो सही नॉलेज दे रहा है, राइट नॉलेज है नहीं है, कैसा है, मेरे को पता ही नहीं है। उसके लिए क्या होता है, आपको टाइम लगता है। बहुत लकी होते हैं लोग जिनको मेंटर मिलता है। तो मेंटर मिलने के लिए भी आपको टाइम लगता है, तो धीरे धीरे आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आपको अगर जज करना है कि कौन सा मेंटर मेरे लिए सही है नहीं है, तो आपको सिंपल है, उनके साथ 2-3 महीना आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो आप अपने से हायर वैल्यू को ही तो रखोगे। आपके एज ग्रुप से हायर वैल्यू के साथ ही आप घूमोगे फिरोगे, बातचीत करोगे, तो उनका माइंडसेट, जब आप फ्रेम ऑफ माइंडसेट पढ़ोगे, वो आप रिलेट करोगे अपने आप से कि मेरा माइंडसेट उनसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। करेक्ट। रिलेट हो रहा है तो आप उनको आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास करो।
भले आप रास्ते में उनसे शायद क्रॉस कर जाओ या उसमें कहीं जगह कहीं फंबल हो, कहीं जगह फंसोगे, लेकिन आप फंबल होगे या फेल भी होगे तो आप वहां कुछ ना कुछ सीखोगे। उस पे ज्यादा प्रायोरिटाइज करो, अपने आप सब चीज सही होगा। ये ईगो लिफ्टिंग, ये सब कॉन्सेप्ट जितने भी है, ये उसी जगह पे चलते हैं जहां पर लोग अपने आप में बहुत ज्यादा एकदम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाके एकदम अपना एनवायरनमेंट को ऐसा टॉक्सिक बना देते हैं कि हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। लड़ाई का पॉइंट तभी है जब वो उसमें हम लोग को पता है कि मैं अंडर अचीवर हूँ, मेरे को कुछ बेटर करना है, और वहां पर मेरे को थर्ड पर्सन ही मेरा एक जरिया है जहां जिससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। सामने कोई पर्सन ही नहीं खड़ा तो किससे कंपेयर करोगे? बराबर। वही है ना। तो जब हम लोग कंपटीशन के लिए किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा माइंडसेट ये रहता है कि हम लोग को अपना बेस्ट देना है। एक बार कंपटीशन खत्म हो गया तो हम लोग को इवैल्यूएशन मोड पे उतरना है कि हम लोग कहाँ कहाँ लैगिंग थे, फिर हमको काम करना है। तो प्रोसेस फिर वैसे ही साइकिल रिपीट होता है, फिर सर बैक टू फिर वही सेम चालू होता है। तो ये सब डिस्कस करने के लिए मेंटर चाहिए और कॉम्पीट करने के लिए लोग चाहिए, तो तब जाके वो इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर में वो एक सेटलमेंट आता है। हम लोग के जिम में कभी देखा है क्या कोई लड़ाई झगड़ा? होता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। बाकी जिम के मुकाबले हम लोग के जिम में इतने सारे लोग हैं, डेली कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिफ्ट कर रहा है, हर जगह कोई किसी से साथ कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर है भी तो सब एकदम फ्रेंडली मोड पे है। ट्रेनर के साथ कोई ऐसा नहीं है कि ये ट्रेनर अलग है वो ट्रेनर अलग है, सब एक मोड पे चल रहे हैं। किसी को कुछ नहीं है, मॉर्निंग वाला इवनिंग को बता सकता है, इवनिंग वाला मॉर्निंग को बता सकता है, कुछ भी सब सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लूप्रिंट सही है। ब्लूप्रिंट कौन बनाता है? जो ट्रेनर, जो जिम का जो मेन हेड होता है, जो भी पर्सन जो जिम का मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कैसा ब्लूप्रिंट बनाए जो हर ग्रुप को कैटर कर सके और उसमें एक सिस्टम बिल्ड हो। Hope you have enjoyed the conversation so far. Unfortunately, due to some technical issues, we had to wrap this one up earlier than planned. But if you found value in it and want to hear more, let me know in the comments or the messages. Based on your engagement, I'll bring back Nikhil for part 2. Until then, thanks for tuning in. See you in the next episode.